So welcome back to my channel, and today we are going to deal with theories of punishment and concept of crime. This is video lecture number 2 of BNS. Okay. So punishment. What is the meaning of punishment? The fundamental aim of punishment is to give relief to the aggrieved party and to maintain law and order in the society. So what is the ultimate goal of punishment? To give relief to the aggrieved party. जो भी victim है, जो भी aggrieved party, उनको relief मिलना चाहिए. सिंपल से एग्जांपल है, जब किसी बच्चे को चोट लग जाता है किसी दूसरे बच्चे के कारण, तो उस दूसरे बच्चे की माँ उसको जब पीट देती है, अच्छे से उसकी कुटाई कर देती है, तो सामने वाले पार्टी को जिसको चोट लगा हुआ है वो ऑलरेडी रोना बंद कर देता है या उसका जो दुख है थोड़ा कम हो जाता है. सेम गोज विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑल्सो. जब कोई एग्रीव पार्टी है, जो कोई विक्टिम है, जब उसके साथ कुछ क्राइम होता है, कोई ऑफेंस होता है, तो जब स्टेट अदर पार्टी को पनिश करती है तो इट फील्स लाइक कि हाँ, हमारी सोसाइटी में आज भी लॉ एंड रेगुलेशन का प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, प्लस उसके अगेंस्ट कोई भी जाएगा तो उनको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, जिसका क्या होता है, सभी को डर होता है कि अगर हम कुछ भी ऑफेंस करते हैं तो वी विल बी गेटिंग पनिशमेंट. Punishment can also be termed as the imposition of some form of deprivation by withholding rights that a person is legally entitled to. Like जब किसी को punishment मिलता है तो उसको उसके जो legal rights होते हैं वो कहीं ना कहीं infringe होते हैं. For example, right to vote एक नॉर्मल पर्सन के पास है अगर वो अबव 18 ईयर्स है, लेकिन वही पर्सन अगर जेल में, तो क्या उसके पास वो राइट है? नो. राइट टू लिव विथ काइंड ऑफ जो नॉर्मल पर्सन है, जिनको पनिशमेंट नहीं मिला, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, विच इज लॉफुल. बट जो पर्सन पनिश्ड है, जिनको पनिशमेंट मिली हुई, जो बिहाइंड दी बार्स है, क्या उनके साथ ऐसा है? नो. सो दे आर हैविंग सम ऑफ काइंड ऑफ डिप्रिवेशन by withholding some of their rights. What is the object of punishment? To protect society from mischievous elements, to prevent actual offenders from committing further offenses, to eradicate evils and reforms criminals and turn them into law-abiding citizens, to administrate justice partly by inflicting pain to deter criminals and indulging in crimes, and the criminals who are indulging in crimes, and partly by reforming criminals, to maintain rules and regulation for a crime-free country. So these are the basic kinds of objects of the punishments. Okay, done. Next, theories of punishment, which is our main topic. So there are 5 theories which we are going to deal in this video. First one is retributive theory. What is retributive theory? This theory emphasizes an eye for an eye. बोलते हैं ना कि जैसा तुमने किया है सेम हम वैसा करेंगे. ठीक है, दैट मीन्स आई फॉर एन आई. ठीक है, पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द. अगर आपने मुझे मारा है और मुझे लेफ्ट हैंड में ही फ्रैक्चर है, I will also kill you the same way in the way you killed my or you fractured my left hand. That is the example of this an eye for an eye. आपने अगर मेरा आंख नोचा है तो हम भी आपका आंख नोचेंगे, तभी आपको satisfaction मिलेगा कि yes, I have got the justice. Okay, relevance to BNS. BNS acknowledges the need for punishment to be commensurate with the offense, ensuring that offenders are held accountable for their actions. Deterrent theory. Deter से याद रखना है डर. पनिशमेंट हम क्यों देते हैं? टू क्रिएट डर इन द सोसाइटी. ठीक है, अगर हम पनिशमेंट ही नहीं देंगे किसी को तो क्या हमारे सोसाइटी में क्राइम्स जो आज के रेट से बढ़ रहे हैं, क्या वो उससे कम होंगी? नहीं, उससे ज्यादा ही रहेंगी, बल्कि हर एक नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्राइम देखने को मिलेगा. सो डेटरेंट थ्योरी. This theory aims to prevent future crimes by making the punishment serve as an example. This should be severe. Okay, severe है ये. Severe as an example to others, deterring them from committing the similar offenses. Relevance to BNS क्या है कि serious crimes जो होते हैं like rape and murders, उसके लिए जो भी punishments है उसके वजह से कुछ हद तक हमारी सोसाइटी में आज भी डर है कि अगर हम मर्डर करते हैं या रेप करते हैं या और भी सीरियस ऑफेंसेस करते हैं तो हमको इतने पनिशमेंट, इतनी कड़ी से कड़ी सजाएं मिल सकती हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी. व्हाट इज रिफॉर्मेटिव? रिफॉर्म करना है ना, चेंजेस करना. दिस थ्योरी एम्फसाइज रिहैबिलिटेशन. दिस इज द मेन कीवर्ड एंड एम्स टू चेंज द ऑफेंडर्स बिहेवियर. इसमें मेन फोकस किया जाता है कि ऑफेंडर के बिहेवियर को हमें चेंज करना है. ओके, थ्रू एजुकेशन, काउंसलिंग एंड अदर प्रोग्राम्स. क्लियर?
The BNS incorporates reformative principles, particularly for first-time or minor offenders seeking to help individuals become productive members of society. Preventive theory क्या होता है? This theory aims to prevent future crimes by incapacitating the offenders or removing them from the society. Preventive क्या होता है? हम कुछ जो क्रिमिनल्स हैं उनको सोसाइटी से हटा रहे हैं. किस तरीके से हटा रहे हैं? बाय इम्प्रिजनमेंट उनको हटा रहे हैं या फिर डेथ पेनल्टी. उनको सोसाइटी से प्रिवेंट किया जा रहा है ताकि सोसाइटी में जो क्राइम का रेट है वो कम हो. ठीक. नेक्स्ट इज कंपनसेटरी थ्योरी. दिस थ्योरी एम्फसाइजेस कंपनसेटिंग विक्टिम्स फॉर द हार्म कॉज्ड बाय द क्राइम्स. तो वही कंपनसेशन देना, डैमेजेस देना कि लाइक किसी ने किसी का एक्सीडेंट किया है और उसको जेल भेज दिया. क्या उसको कुछ उसको पर्सनल फायदा क्या होगा? जो विक्टिम था, आखिरकार उसको फाइनेंशियल लॉसेस हुए, उसको पर्सनल लाइफ में बहुत लॉसेस हुएंगे. सिंपल एग्जांपल हम एक मोटर एक्सीडेंट का ले सकते हैं. ठीक. अब सिर्फ अगर आप उसको सामने वाले व्यक्ति को जो एक्यूज है उसको आप जेल में डाल दोगे तो दैट विल नॉट कंप्लीटली गोइंग टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम, है ना. अगर आप उनको कंपनसेशन दे दोगे उसके जगह में तो शायद कुछ हद तक उसको रिलीफ मिले, है ना. दैट इज कंपनसेटरी थ्योरी. ओके. Next is we will deal about concept of crime and offense. So this is very important concept to deal to understand between the difference between the crime and offense. Crime हर वो चीज होती है जो कि अगेंस्ट होती है सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से. सोसाइटी के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं जिनके अगेंस्ट अगर हम जाते तो हम क्राइम करते हैं. पर वो ही क्राइम ऑफेंस में कब तब्दील होता है? वो क्राइम ऑफेंस में तब तब्दील होता है जब उसके अगेंस्ट कुछ लॉ होगा कि लॉ में लिखा है कि हाँ इस क्राइम का ये सजा है. तो क्राइम विच इज पनिशेबल बाय दिस विच इज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी. बट व्हाट इज ऑफेंस? विच इज पनिशेबल इन द लॉ एंड विच इज द एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ. इट कुड बी एनी एक्ट और इट कुड बी एनी ओमिशन. हम कुछ एक्ट करके भी कुछ क्राइम कर सकते हैं और कुछ काम ना करके मतलब ओमिट करके यानी कि ओमिशन करके भी हम क्राइम कर सकते हैं. ठीक है. द टर्म क्राइम डिनोट्स. अब क्राइम का मतलब क्या होता है? एन अनलॉफुल एक्ट एंड दिस अनलॉफुल एक्ट इज पनिशेबल बाय स्टेट. की एक्ट तो अनलॉफुल है और वही चीज क्या है? पनिशेबल बाय स्टेट. और जब ये पनिशेबल बाय स्टेट हो जाता है तो ये हो जाता है हमारा क्या? ये हो जाता है हमारा ऑफेंस. क्लियर. अ कॉमन प्रिंसिपल अबाउट क्रिमिनल लॉ इज दैट अनलेस एन एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इट डज नॉट क्वालिफाई एज एन ऑफेंस. कि भले वो चीजें सोसाइटी के अगेंस्ट हो लेकिन अगर वो हमारे लॉ में नहीं कोडिफाइड है तो हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे और उसके लिए हम पनिशमेंट भी नहीं दे सकते हैं. सो ऑफेंसेस आर एक्ट्स दैट आर फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय लॉ. ठीक है. The body of law which deals with imposing punishments on crimes is known as criminal law. So what is criminal law? There should be a clear understanding between crime, offense, criminals, criminal law. These are the basic understanding to understand the whole concept of Bharatiya Nyaya Sanhita. ठीक है. So what is criminal law? A body of law which deals with imposing punishments on crimes is known as criminal law. ठीक है. एवरी ऑफेंस इज अ क्राइम बट एवरी क्राइम इज नॉट एन ऑफेंस. इसका एक वेन डायग्राम हमारा बन सकता है. हर चीज क्या है? क्राइम है. बट हर ऑफेंस क्या है? क्राइम है. बट क्या हर क्राइम ऑफेंस है? नो. क्लियर. क्या मैंने कहा कि ये हमारा येलो वाला जो पार्ट है वो है हमारा ऑफेंस. ओके. और ये जो बड़ा ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है दिस इज क्राइम. तो हर ऑफेंस क्राइम है बट हर क्राइम ऑफेंस नहीं है. दैट इज what I am trying to explain. Okay. Next, moving forward to the next slide, that is elements of crime. So there are 4 elements of crime, that is human being, mens rea, actus reus and injury. Human being, it can be male, female or anyone. Mens rea, guilty intention. Actus reus, illegal act or omission. ठीक है. इसमें एक्ट भी आता है और ओमिशन भी आते हैं. इंजरी, किसको इंजरी? माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन. 4 चीजों को इंजरी हो सकती है. इसमें एनिमल्स वगैरह नहीं आएंगे फिर. ठीक है. माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेप्यूटेशन. क्लियर. Next, moving forward, we will deal with each of the categories one by one. So first element is of the crime is human being. की पहली बात तो वो जो क्राइम है वो किसके द्वारा होना चाहिए? वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा होना चाहिए. The first element of crime is that a human being must commit the wrongful act. ये जो भी एक्ट है, जो भी wrongful act है, वो कौन कमिट करा होना चाहिए? वो एक ह्यूमन बीइंग कमिट करा होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज
Let me try something else. Okay, for example, what is the example? If a dog, see example यहाँ पे आ गया हमारा एनिमल के वाला. If a dog bites anyone, he cannot be punished. अगर एक डॉगी किसी को बाइट करता है तो क्या वो पनिश हो सकता है? सो आंसर इज नो for it. But in Indian Penal Code, or we can say now in BNS, if animal causes injury, we do not make animals liable. The first element of crime is human being who must be given appropriate punishment and should be under legal obligation to hold criminally liable. It can be male or female. So इस example से clear कि animal कभी भी क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? वो एक एजेंट नहीं हो सकता है हमारे क्राइम कॉज करने का, एलिमेंट नहीं हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, मेंस रिया, गिल्टी माइंड. मेंस रिया इज द मेंटल एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. ठीक है, दिस इज द मेंटल एलिमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका गिल्टी इंटेंशन है ही नहीं, गिल्टी माइंड है ही नहीं, तो वो क्राइम नहीं है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, इट रिफर्स टू द इंटेंट और नॉलेज ऑफ द रॉन्ग डूइंग दैट forms part of a crime. Without a guilty mind, an act does not typically result in criminal liability. मतलब कि guilty mind होना जरूरी है. टाइप्स ऑफ मेंसरिया में क्या था? आपका इंटेंशन हो सकता है, आपके पास नॉलेज हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? रेकलेसनेस हो सकता है, नेग्लिजेंसी हो सकता है, मोटिव हो सकता है. We will deal with each one. इंटेंशन मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल स्टेट वेयर एन इंडिविजुअल डिजायर्स द आउटकम ऑफ देयर एक्ट. की इंटेंशन कि उनको आउटकम क्या चाहिए, ठीक है, दैट इज इंटेंशन. नॉलेज मतलब क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन. हमको पता है कि हम अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या कर देते हैं, तेल गिरा देते हैं, ठीक है, और हमको पता है कि वहां से कोई गुजरेगा तो वो फिसल के गिर सकता है, उसको बहुत चोट लग सकती है, फ्रैक्चर तक हो सकता है. ये हमको नॉलेज है, दैट इज नॉलेज, अवेयर होना. ठीक है, इसका मेन एलिमेंट क्या है हमारा? अवेयरनेस. ठीक, इसमें क्या आउटकम आपको क्या चाहिए? इंटेंशन. हमारा इंटेंशन है कि हमको जज बनना, ठीक है, दैट इज. अब हमको नॉलेज क्या है कि अगर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, अगर हम सारे PYQs करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा, दैट इज अवेयरनेस. आई एम अवेयर कि हो जाएगा. नेक्स्ट इज रेकलेसनेस, कॉन्शियस डिसरिगार्ड ऑफ सब्सटेंशियल रिस्क. हमको पता है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, बट हमको कॉन्शियस है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, बट देन ऑल्सो वी आर टेकिंग एट रिस्क एंड हम रील्स देखते हैं और क्या हो जाते हैं? नंबर कम आते हैं हमारे. दैट इज रेकलेसनेस, है ना. रेकलेस ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग भी होता है कि हमको पता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन से जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाले को भी चोट लग सकता है. देन ऑल्सो वी आर ड्राइविंग इन द रॉन्ग साइड, दैट इज रेकलेसनेस. नेग्लिजेंसी, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर लीडिंग टू अनइंटेंडेड हार्म. ओके. मोटिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब कि वाई वी आर, मतलब देखो इंटेंशन में था कि व्हाट, एंड मोटिव में होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्यों आपको वो चीज अचीव करना है, वाई. ठीक है. ओके, नाउ वी विल सी. अभी जितने भी IPC वाले सेक्शन है, वी विल नॉट गोइंग टू डील विद दैट, वी विल ओनली डील विद BNS. ओके, क्लियर, फुल फ्लेजेड BNS. नाउ वी आर हैविंग दिस maxim, that is actus non facet trium nisi mensitria. No person can be punished in a proceeding of unless it can be shown he has a guilty mind. यहाँ पे ये चीजें छुप रही है. तो मेन इसका कहने का मतलब यही है. इस मैगजीम का मतलब मैं सिंपल से शब्दों में बता देती हूँ. क्या होता है कि कोई भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं दे सकते हो until and unless क्या प्रूफ हो जाए? उसका गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन प्रूफ होना जरूरी है. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. तो मेंटल एलिमेंट्स में क्या क्या है? इंटेंशन, जो मैंने बताया कि व्हाट, ठीक है, क्या क्या करना है, ठीक. एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान इन माइंड, है ना, कि आपका माइंड में क्या प्लान चल रहा है, दैट इज इंटेंशन, है ना. मेंस रिया, गिल्टी माइंड आपका होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए. नॉलेज, अवेयर है आपकी, अगर आप वो करोगे तो उससे सामने वाले को चोट हो सकता है. अगर आप चाकू से किसी को मारोगे तो इट कैन कॉज इनटू ग्रीवियस हर्ट. मोटिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्या आप क्यों वो चीज अचीव करना चाहते हो? आप शायद इसलिए अचीव करना चाहते हो क्योंकि आपको पिछला पुराना बदला निकालना है, तो दैट इज वाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ.
Now we'll go towards this actus reus, that is guilty act. Actus reus refers to that is the third element. Okay, actus reus refers to the external physical component of a crime. This is the external physical component of a crime. It includes an unlawful act or omission in legal consequences. या तो आप कोई unlawful act कर रहे हो या unlawful omission कर रहे हो. अगर हम किसी के एक्टस रियस को ही प्रूव नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के क्रिमिनल लायबिलिटी को स्टैब्लिश करना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव समवन्स एक्टस रियस गिल्टी एक्ट. illustration, if A intentionally shoots B resulting in B's death, A intentionally B को मारा जिसके वजह से B की डेथ हो गई. A has committed actus reus, तो वो जिसने शूट किया, A ने शूट किया, तो that shooting is the actus reus. Okay. Injury. As per section 2 clause 14 of BNS, the injury is defined as may harm as any harm illegally caused by any person in body, mind, reputation, property. ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को प्रूव करना बहुत जरूरी है. अगर प्रूव नहीं होता है तो फिर हम एक्यूज को सजा नहीं दिलवा पाएंगे. ठीक है. सो दीज all are the 4 elements which needs to be proved. मेंस रिया व्हेन नॉट एसेंशियल. कब कब मेंस रिया एसेंशियल नहीं होता है? तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने टाइम, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किडनैपिंग, बाइगेमी, वेजिंग वॉर, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप एंड सेलिंग ऑफ ऑब्सीन बुक्स. नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम? So there are 4 stages of crime: intention, preparation, attempt and commission. Intention, preparation, attempt and commission. IPAC, that is intention. पहले हमारे इंटेंट होगा कुछ, देन हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे. लाइक हमारे पास क्या इंटेंशन है कि हमको किसी का फॉर एग्जाम्पल मर्डर करना है. ठीक है. आई वॉन्ट टू मर्डर बी. नाउ आई विल प्रिपेयर द नेसेसरी रिसोर्सेस. मुझे नाइफ चाहिए, मुझे बहुत सारी मटेरियल, मुझे एक रोप चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी. ठीक है. उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूंगी. देन लाइट चली गई है बट वी कैन स्टिल कंटिन्यू, है ना. सच कोई डिस्टर्बेंस है नहीं. सो स्टेज 2 प्रिपरेशन. ओके. नेक्स्ट स्टेज 3 इज अटेम्प्ट. नाउ आई विल अटेम्प्ट, आई विल ट्राई टू किल हिम. देन कमीशन. जब मैं पूरा उसका कमीशन कर दूंगी, लाइक आई stab that person, that means I have committed that crime. So these are the 4 stages of the crime. Now we'll see intention. We will deal each stage one by one. So first stage is intention. What is intention? Intention is the first stage of the crime. Intention is the first stage of crime where the accused person forms the mental state or mens rea to commit a particular offense. की intention किसी का क्या है? mental state है कि उसको कोई particular offense commit करना है. it involves a conscious decision. अभी हमने कुछ भी perform नहीं किया. it is all in our mind or desire to commit the crime without taking any physical action towards its execution. Intention may be either general or specific depending on the nature of the offences. In the Indian legal system, criminal intent is considered the first stage of committing crime. However, it is important to note that individuals are not punished for the evil thoughts. अब ये एक माना जाता है, एक प्रिंसिपल है कि मन में तो सबके बुराई चलता है ना, और आज के डेट में तो हर किसी के मन में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो बुराई चलते रहती है. तो सिर्फ एक गिल्टी इंटेंशन होने से, गिल्टी माइंड होने से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ही इज पनिशेबल. ओके. देयर शुड बी अ प्रॉपर एक्ट ऑल्सो. क्योंकि मन में तो मैं सोच लूंगी ना मैं उस पर्सन को मारना चाहती हूँ, पर क्या सच में ऐसा हुआ है? नहीं. जब तक सच में वो चीज नहीं हो सकता तब तक इट इज नॉट एट ऑल अ क्राइम. Next is criminal intent alone cannot be punished until a crime has been committed with that intent. The concept of criminal intent plays a crucial role in determining the culpability of an accused person and guiding the appropriate charges of the punishment. Preparation. Second stage क्या है हमारा? Preparation. The preparation stage follows the intention stage. मतलब intention है हमारा, उसको मारना है. अब हम उसके लिए क्या करेंगे? Preparation करेंगे. Involves taking actions towards the execution of the intended
offenses. In this stage, the accused person makes an arrangement. I will arrange the necessary resources, gather resources, and plans the details of the crimes, but has not yet taken any concrete steps towards. मैंने बस प्लान बना लिया है कि मैं ऐसे ऐसे प्रिपेयर करूंगी सारे स्टेप्स, या फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को कुआं में ले जा करके गिरा के मारना है, आई विल प्रिपेयर द होल सिनेरियो, किस तरीके से मैं उसको कुएं तक ले करके जाऊंगी, दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज द, कब ये पनिशेबल होता है, व्हेन द ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ, सिर्फ देखो सिर्फ प्रिपरेशन करना इज नॉट पनिशेबल, बट इन सर्टेन cases only preparation is also punishable. So what are those scenarios? Let us see. When the offense is regarded as a serious offense, preparation to commit offenses is penalized under BNS हो जाएगा ये, ठीक है, BNS हो जाएगा ये. Few of them are mentioned below. Warfare preparations against government, preparing coins or government stamps for counterfeiting, having counterfeit money, fraudulent documents or fake weights, making plans to commit dacoity. Light आ गया. Next is attempt. The attempt stage follows the preparation stage. अब हमारा intention था, हमने उसके लिए कुछ चीजें prepare करी, अब I will going to attempt for that. Okay, so attempt stage follows the preparation stage and involves taking direct actions towards the commission of the intended offenses. It is the stage where the accused person makes a physical or overt act towards the completion of the crime. वो कोशिश करेगा towards the completion of the crime, but the offense is not fully consummated. Illustration क्या क्या है इसके लिए? The person who intends to steal from the store may go to the store, but after hours breaks the locks using, for example, नॉर्मल से इसको अच्छे से समझते हैं, जो लिखा आप उसको खुद से पढ़ लेना. एक पर्सन, इसका इंटेंशन क्या था कि मुझे उस दुकान में जाकर के चोरी करना है, प्रिपेयर कर लिया सारी चीजें कि कैसे वो ताला को तोड़ेगा, कैसे वो अंदर घुसेगा, मास्क लगा के घुसेगा, कैमरा पहले करेगा, सब वो प्रिपरेशन कर लिया, ठीक है. अब वो अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट कैसे करेगा, वो अंदर घुस कर अटेम्प्ट करेगा, ठीक है. तो जैसे ही वो घुसा अंदर, दैट इज अटेम्प्ट उसने कर लिया है, ठीक. अब आता है क्या, इसके बाद आता है हमारा एक और लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज, जहां उसने प्रॉपर वो कमिट कर दिया है, कमीशन, ठीक है. उसके पहले हम देखेंगे कि what are the certain tests to determine whether the act in question amounts to attempt. So there are three tests, that is proximity test, locus potendi and equivocality test. इन तीन टेस्ट को हम लोग देखेंगे क्या सच में उसने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया. तो पहला आता है हमारा प्रॉक्सिमिटी टेस्ट. प्रॉक्सिमिटी मतलब कि वी विल सी कि टाइम एंड एक्शन, उन दोनों के बीच में क्या है. देखो क्या लिखा है, प्रॉक्सिमिटी इज अ लिंकेज बिटवीन टाइम एंड एक्शन और टू द इंटेंशन. लिंक करेंगे कि उसका इंटेंशन क्या था और उसने अटेम्प्ट उस डायरेक्शन में क्या किया है. इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन whether a person is dangerously close to completing the crime or so near to the result that the danger of success is very high. ये सब चीजें देखी जाएंगी कि वो डेंजरसली क्लोज था या बहुत ज्यादा उसके करीब था कि उस क्राइम का होने का बहुत ज्यादा चांसेस था. ये सब हम देखेंगे while determining the test. Okay, while determining whether the act is amount to the attempt or not. Next is locus पोटेंशियल. आपको जिसको जो रीड आउट करना आप कर सकते हो. The doctrine of locus potendi says that when an act is such that there is an ample time with the accused to choose. मतलब इसका है कि accused के पास ample time था कि वो चूज कर सकता था कि उसको ये एक्ट करना है कि नहीं, फिर भी उसने कर रहा है तो फिर वो अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक. Equivocality test states that when an act of a person can prove beyond reasonable doubt the likeliness of committing the crime, it shall constitute as an attempt to commit the crime rather than mere preparation. Clear? Next is commission. Commission is the stage, that is the final stage of a crime where the accused person successfully completes the offences by performing all the necessary acts to accomplish the intended crime. It is the stage where the mens rea and actus reus of the accused coincide, resulting in the consummation of the offences. ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे उसका mens rea and actus reus कंज्यूमेट होते हैं, मिलते हैं, और क्या हो जाता है, हमारा क्राइम जो है वो कमिट हो जाता है, ठीक है. अब इसका इलस्ट्रेशन क्या है, वही वाला एग्जांपल है. द पर्सन हु इंटेंडेड टू स्टील फ्रॉम द स्टोर सक्सेसफुली ब्रेक्स द लॉक, एंटर्स द स्टोर एंड स्टील्स अ वैल्यूएबल. वो अंदर घुस गया तो वो अटेम्प्ट हो गया, वो स्टील भी कर लिया है, देन इट इज कॉल्ड एज अ कमीशन ऑफ दैट क्राइम. क्लियर?
Now we'll see two of the case laws. पहला है R versus Prince. Strict liability के ऊपर है. इसमें क्या होता है, Prince took away a girl below 16 years और वो लड़की क्या कहती है कि मैं कितने साल की हूँ, 18 years की, और वो देखने से भी लगती है कि हाँ वो कितने years की है, 18 years की है. English court ने क्या हेल्ड किया कि he cannot be given the benefit of doctrine of mens rea because this is the case of mistake of law. Taking away a girl below 16 years is unlawful, hence he was held guilty की this is the mistake of law and mistake of law is not at all फॉरगिवेबल. उसको हम नहीं बख्श सकते हैं. ठीक है, कहने का मतलब यही है, आपने क्राइम किया है, वो भले अब लड़की झूठ बोले जो बोले, आपको पता लगाना था. इसलिए भाई कुछ करने से पहले आधार कार्ड सब आप लोग वेरीफाई करवा लीजिए, दैट विल बी बेटर. नेक्स्ट इज क्वीन वर्सेस टिल्सन. ये भी सिंपल सा केस है, ज्यादा कुछ वैसा नहीं है, देखने से बहुत बड़ा लग रहा है. इसमें ये होता है कि सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा. ये केस ए एंड बी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उसमें से हस्बैंड की डेथ हो जाती है. 6 years तक वाइफ वेट करती है कि उसके हस्बैंड आएंगे, पर वो नहीं आते हैं. वो उसी के भाई से शादी कर लेती है. ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या, ऑन द ग्राउंड ऑफ कि उसकी डेथ हो चुकी है. अभी 6 साल हुए थे, 7 साल तक का प्रोविजन है, बट 6 साल हो चुके थे. तो अब उसे शादी कर लिया. अब वो उसी टाइम पे लौट करके आ जाता है, पता नहीं कहाँ से कैसे, है ना, अचानक से प्रकट हो जाता है सीरियल टीवी सीरियल टाइप्स. तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इसके लिए कोर्ट में क्योंकि अर्जी डाली गई कि ये तो बाइगेमी इसने कमिट कर दिया, तो फिर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि उनका इंटेंशनल गिल्टी नहीं था. भाई 6 साल से नहीं आए हो वो, देखो इसमें हेल्ड क्या हुआ था, द क्वेश्चन बिफोर, मतलब इसमें हेल्ड यही हुआ था कि उनका गिल्टी इंटेंशन नहीं था, उन्होंने सच में मान लिया था कि आप खो चुके हैं, तो शी विल नॉट बी गेटिंग पनिशमेंट. ये इसमें हेल्ड हुआ था. आप यहाँ से रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, सो आई होप सो कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रोविजंस ऑफ बीएनएस एंड आई होप सो कि ये सक्सेसफुली हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो और आपको सच में सब कुछ अच्छे से समझ आए. सो थैंक यू and have a nice day.